Assalamu alaikum. The next topic that we're going to discuss is interference in system capacity. How the interference degrade the system capacity. How the performance of the cellular network is impacted by, affected by the interference. What are the types of interference? How we can mitigate or we can minimize the interference, or we can bring it down below the threshold value, the minimum acceptable interference level. So all these things will be discussed in this lecture. Basically, interference is a limiting factor in performance of a solar system. It has been recognized as a major bottleneck in increasing the system capacity, and often it is responsible for the system call, drop call, or even block call. Mostly the in case of the drop call, because this due to the interference, the ongoing calls are affected, the quality of the ongoing call are affected. So what are the sources of the interference? Basically, sources of the interference are another mobile in the same cell. For example, there is a call is connected and using a channel, and there is another mobile in the same cell which is allotted the same uh, adjacent channel, the channel next to that one, that can create interference into, that will induce the interference into the particular call. A call in progress in the neighbor cell. For example, you are in cell A and there is another user in cell B, and that user has been allocated the same resources as you, the same channel as you, the same frequency spectrum of the channel as you are allocated, or he's assigned adjacent cell, adjacent channel, not exactly the same, but adjacent channel that can also induce interference into your call. Other base station operating in the same frequency, not necessarily the neighbor cell, but it can be a cell that is not the adjacent one, but in the second tier that is using the same frequency band. जिस तरह हमने कहा था कि जो रीयूज सेल, द सेल, वो सेल जिसके अंदर सेम फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ होता, तो उस सेल में अगर कोई कॉल इन प्रोग्रेस है और वो सेम चैनल जो कि फ्रिक्वेंसी शेयर हो रही है, तो वहाँ जो अगर ट्रांसमिशन पावर इज़, if the transmission power is high enough that it can reach to the serving best your serving best station edge area, so coverage area. तो उसमें यह है कि वो इंटरफेरेंस आपकी कॉल को डिस्टर्ब कर सकती है. उसके अलावा ये तो सेलुलर सिस्टम के खुद से जो इंटरफेरेंस इंड्यूस होते हैं वो है. उसके अलावा हमारे पास नॉन सेलुलर सिस्टम दैट लीक एनर्जी इनटू द सेलुलर फ्रिक्वेंसी बैंड. नॉन सेलुलर सिस्टम भी जो कि नॉन सेलुलर सिस्टम जरूरी नहीं कि सेलुलर ही हो, लेकिन अगर कोई और सिस्टम हो और वो आपकी फ्रिक्वेंसी बैंड में ही एनर्जी लीक कर रही हो, ट्रांसमिशन कर रही हो, उसी बैंड को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो that can also cause the interference, or it can interrupt your call. इंटरफेरेंस से होता क्या है? अगर इंटरफेरेंस अगर होती है तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जब इंटरफेरेंस दो या हमारे पास दो तरह के चैनल होते हैं. एक हमारे पास वॉइस चैनल होते हैं और दूसरा होता है कंट्रोल चैनल. वॉइस चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द वॉइस डेटा, जो आपका एक्चुअल डेटा होता है, एंड कंट्रोल चैनल आपकी कॉल जो इनिशिएट होती है, कॉल टर्मिनेट होती है, कॉल रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो सारी कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल चैनल के थ्रू होती है. अगेन चैनल के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक फॉरवर्ड चैनल होता है, एक रिवर्स चैनल होता है. फॉरवर्ड चैनल जो होता है वो BTS से यूज़र तक जो डेटा जाता है उसके लिए फॉरवर्ड चैनल यूज़ होते हैं. फॉरवर्ड वॉइस चैनल भी हमारे पास होते हैं, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल भी होता है. इसी तरह रिवर्स
वॉइस चैनल भी होते हैं और रिवर्स कंट्रोल चैनल भी होते हैं। रिवर्स में यूज़र से मोबाइल स्टेशन से बीटीएस की तरफ जो वॉइस मतलब अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ जो कि टावर तक जाती है वो आपकी वॉइस वो रिवर्स वॉइस चैनल के थ्रू जाती है। इसी तरह आपके सिस्टम से जो एक्नॉलेजमेंट या जो कॉल रिक्वेस्ट जाती है थ्रू टू द बेस स्टेशन वो रिवर्स कंट्रोल चैनल के थ्रू जाती है। तो अगर इंटरफेरेंस आपके वॉइस चैनल पे भी आ सकती है और इंटरफेरेंस आपके कंट्रोल चैनल पे भी आ सकती है। कंट्रोल चैनल और वॉइस चैनल दोनों आपके सेल या आपके बीटीएस को जो एलोकेटेड बैंडविड्थ होता है उस बैंडविड्थ को फर्दर डिवाइड किया जाता है स्मॉल चैनल्स में, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल 15 किलो हर्ट्ज का हमारे पास चैनल होता था 1G में, तो इस तरह डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ चैनल्स आपके पास आ जाती है। उसी में चैनल्स में से कंट्रोल चैनल्स उसको डिवाइड किया जाता है। कुछ चैनल जो है वो कंट्रोल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और कुछ चैनल जो है वो वॉइस कंट्रोल चैनल के लिए कम होते हैं, वॉइस चैनल जो हमारे पास होते हैं उसमें ज़्यादा चैनल होते हैं। तो वो क्या है कि कंट्रोल कंट्रोल चैनल और वॉइस चैनल दोनों आपके फ्रिक्वेंसी बैंड जो आपको एलोकेट हुआ है, जो आपके बीटीएस को एलोकेट होते हैं उसके पार्ट है। तो इंटरफेरेंस अगर आती है तो इंटरफेरेंस कंट्रोल चैनल पर भी आ सकती है और वॉइस चैनल पर भी आ सकती है। सो अगर कंट्रोल चैनल अगर वॉइस चैनल पे आपकी इंटरफेरेंस आती है तो उससे क्या होता है कि क्रॉस टॉक अगर होती है। क्रॉस टॉक का आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी कॉल क्रॉस हो जाती है किसी और के साथ, एंड द पर्सन यू आर टॉकिंग टू is talking to someone else and you are talking to that the person that the other person is talking to। और कंट्रोल चैनल में क्या होता है कि आपकी कॉल या तो मिस हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल चैनल पे जब इंटरफेरेंस आती है तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन आपके इफ़ेक्ट होते हैं, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन जब इफ़ेक्ट होते हैं मींस आपकी कॉल प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, कॉल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी, तो फिर हमारे पास इंटरफेरेंस के टाइप्स हैं। को चैनल इंटरफेरेंस हमारे पास है और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस हमारे पास है। तो बेसिकली बिफोर प्रोसीडिंग टू द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस लेट मी जस्ट एलाबोरेट के आपकी कॉल इंटरफेरेंस से किस तरह इफ़ेक्ट होती है। जस्ट विद एन एग्जांपल हियर, फॉर एग्जांपल यू आर हियर इन दिस पर्टिकुलर सेल, ठीक है, और आपके साथ यहाँ पे एडजेसेंट जो सेल है उसमें भी एक और सेल है जहाँ पे बीटीएस है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल यू आर समवेयर हियर, यू आर समवेयर हियर मोबाइल स्टेशन, आपको दिस स्टेशन ए, दिस स्टेशन बी, बीटीएस ए एंड बीटीएस बी, आपको यहाँ से एक पर्टिकुलर बैंड, लेट्स से दिस इज चैनल नंबर 21, जस्ट कॉल इट चैनल नंबर 21, और इस चैनल नंबर 21 के थ्रू आपको जो डेटा एक वॉइस चैनल है, चैनल नंबर 21 आपको असाइन किया गया है फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। जैसे यहाँ पे एक यूज़र है बी स्टेशन में, उसको भी यहाँ पे है वो यूज़र, ठीक है, या यहाँ पे है यूज़र, करीब ही कर लेते हैं, यहाँ पे वो यूज़र, उसको भी कम्युनिकेशन करने के लिए चैनल नंबर 21 असाइन किया गया है। अब जो ये सिग्नल है, सिग्नल पावर जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो सिग्नल पावर है, यहाँ पे जो सिग्नल पावर है, ठीक है, तो ये इवन यूज़र यहाँ पे है लेकिन ये सिग्नल यहाँ तक ट्रेवल कर जाता है, और जब यहाँ तक ट्रेवल कर जाता है तो सेम चैनल है, यहाँ पे जो रिसीवर है, जो मोबाइल स्टेशन है आपका, इसके पास जो एंटेना है इस पर्टिकुलर चैनल को इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को रिसीव करने के लिए वो उसके पास दो सिग्नल आ रहे होते हैं। दिस सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम बीटीएस ए, दिस सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम बीटीएस बी, दोनों एक ही स्पेक्ट्रम पे हैं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं। ये मोबाइल, ये एंटेना डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि कौन सा इसमें कौन सी वेव जो है, कौन सा सिग्नल जो है वो एक ही तरफ से आ रहा है, टावर एक ही तरफ से आ रहा है, और कौन सा जो है बी की तरफ से आ रहा है।
बट इज़ पॉसिबल सिंपली क्या होता है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ए को बी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और इंटरफेरेंस का इशू ही नहीं होता। हम हर सेल पे सेम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे होते, कोई इशू ही ना होता। प्रॉब्लम इज़ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, ये मीडियम में एयर में आ रहे होते हैं, और ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी एंटेना आपका जो है, एंटेना को ट्यून किया हुआ होता है इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के ऊपर, और वो इसको रिसीव कर लेते हैं। आफ्टर रिसेप्शन, जब इसको रिसीव कर लिया जाता है, तब इसको रिसेप्शन के बाद इसको जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करके इससे डाटा जो है मॉडुलेट डीमॉडुलेट कर दिया जाता है डाटा को कन्वर्ट कर, और फिर जब डीमॉडुलेट की तो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे होते हैं, ये ए में जो सिग्नल आ रहा होता है फॉर एग्जांपल, वो आपका मैसेज होता है, एक्चुअल मैसेज होता है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। और बी में जो आ रहा होता है वो इस यूज़र के लिए, जो सेकंड यूज़र था, लेट्स से यूज़र नंबर 1, दिस इज यूज़र नंबर 2, तो यूज़र नंबर 2 का मैसेज था। तो लेट्स से यूज़र नंबर 2 का जो मैसेज था वो कुछ इस तरह था, ठीक है। तो अब क्या होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये आपका लेट्स से स्टार्टिंग टाइम है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। तो ये दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे, ये दोनों सिग्नल यहाँ पे कंबाइन हो गए, इसका जो नेट इफेक्ट पड़ेगा वो आपका रिसीव सिग्नल बन जाएगा। तो रिसीव सिग्नल, आपका सिग्नल एक्चुअली यू आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो आपका सिग्नल रिसीव होगा वो यूँ होगा, समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस इज़ नॉट योर डिजायर्ड सिग्नल। तो इसीलिए क्या होता है, आपकी कॉल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। आपकी जो आपको जो मैसेज होता है वो क्लियर नहीं होता, या इवन आपका क्रॉस टॉक जो है वो अगर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब यही मैसेज अगर वॉइस चैनल के बजाय हम बात कर लें कंट्रोल चैनल की, तो कंट्रोल चैनल में भी आपका मैसेज जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो आपके जो एक्चुअल सिग्नल्स होते हैं, सिग्नलिंग जो होती है कॉल इनिशिएशन की, या और इंफॉर्मेशन जो कॉल के हवाले से आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होती, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं होती, तो कॉल मिस हो जाती है या कॉल आपकी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इंटरफेरेंस अकर इन सेलुलर सिस्टम्स। अच्छा, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की, को चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट सेल को चैनल इंटरफेरेंस का मतलब होता है को चैनल, सेम चैनल, जो चैनल आपको एलोकेट हुआ है, अगर वही चैनल आपके नाइबरहुड में, आपके जो नाइबर में सेल है उसमें किसी यूज़र को एलोकेट हुआ है, तो वो भी को चैनल कहलाएगा। या अगर हम फ्रिक्वेंसी रीयूज़ की बात करें और वो लेट्स से नाइबर्स जो आपके सेल है, सराउंडिंग सेल्स है, उसमें सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद एक सेल है जिसको हम को सेल कहते हैं, को सेल में सेम फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ हो रहा है और वहाँ पे सेम चैनल यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको इंटरफेरेंस आती है, डेफिनेटली आती है। बट यूजिंग द सिस्टम डिज़ाइन वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो इंटरफेरेंस आपको आपके सेल के बाउंड्री तक आ रही है, वो सिग्नल, वो इनकी बीच में सेपरेशन इतनी हो कि उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है या उसका जो पावर लेवल है वो आपके सेल के एज एरिया में वो बिल्कुल कम हो और आपके एक्चुअल सिग्नल को इफेक्ट ना करे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस जो होते हैं वो जब हम चैनल एलोकेट करते हैं, तो लेट्स से एक चैनल है, चैनल को हम बैंडविड्थ को हम स्प्लिट कर लेते हैं, लेट्स से 1 मेगाहर्ट्ज से एक 1.15 मेगाहर्ट्ज तक का जो बैंडविड्थ है वो हमने असाइन चैनल 1 हमारे पास हो गया। उसके बाद 1.15 से लेकर 2 लेट्स से 2 तक, सॉरी नहीं 2.5 तक, 2.5 तक जो हमारे पास, या 2.3 तक, सॉरी 1.15 से लेकर 2.3 तक जो हमारे पास चैनल है वो सेकंड चैनल है। अब ये दोनों चैनल एडजेसेंट चैनल कहलाते हैं, क्योंकि ये एक में जैसे ही एक का बैंडविड्थ, इन दोनों जो है एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, तो ये अगर एक ही उसमें क्या कहते हैं, एक ही सेल में दोनों चैनल यूज़ हो रहे हों, तो ये एक जो आपका चैनल है वो एनर्जी लीक करता है दूसरे चैनल में। आपकी फिल्टरिंग चूँकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ये इंटरफेरेंस इंड्यूस कर देती है। तो दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस, जो कि एडजेसेंट सेल की वजह से होती है। इसको भी हमने
हमने एलोकेशन इस तरह से करनी है चैनल्स की कि ये वाली इंटरफेरेंस ये भी मिटिगेट हो कम से कम। अच्छा, हमारे पास जो थर्मल नॉइज़ होती है, जिससे लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जो थर्मल नॉइज़ होती है, थर्मल नॉइज़ जो कि इंड्यूस होती है बाय एक्सटर्नल सोर्सेज, उसको हम ओवरकम किस तरह कर सकते हैं कि हमारी जो अपनी ट्रांसमिटिंग पावर है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसमिटिंग पावर अगर हमारी इंक्रीज़ हो जाए तो थर्मल नॉइज़ जो हमारे पास है वो उसका इम्पेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हम जब मेजर करते हैं कॉल के लिए, क्वालिटी के लिए जो चीज़ हम मेजर करते हैं वो हम सिर्फ पावर यूज़ नहीं करते, हम रेशो यूज़ करते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। तो सिग्नल अगर आपका स्ट्रांग है, अगर नॉइज़ है भी लेकिन सिग्नल उसके मुकाबले में आपका स्ट्रांग है, तो वो आपके सिग्नल को, आपके कम्युनिकेशन को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी अपनी सिग्नल्स कमज़ोर है और नॉइज़ उसके मुकाबले में पावरफुल है, तो उस केस में आपकी नॉइज़ जो है आपकी कॉल को डिस्टर्ब ज़्यादा करेगा। तो उस केस में जब हमारे पास थर्मल नॉइज़ होती है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि अपनी सिग्नल पावर को, सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो वो डेफिनेटली जो थर्मल नॉइज़ होती है उसके मुकाबले में कम हो जाती है, तो अ, उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ये काम हम को चैनल इंटरफेरेंस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, हम इस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, लेट्स से हमारे पास ये सेल है, सेल 1, एंड ये हमारे पास सेल 2 है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि चले, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास यूज़र था, यूज़र 1, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ यूज़र 2। ओके, नॉट हियर, लेट्स से यूज़र 2 हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, यूज़र 2 हमारे पास यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स से ये सेम बैंड जो है हमारे पास, हम उस सेम चैनल को, चैनल हमारे पास सेल्स है दोनों, और हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 1 को, ठीक है, और 2 से हमारे पास यहाँ से जो है इंटरफेरेंस आ रहे हैं, दिस वन, लेट्स से द येलो वन, द ग्रीन वन, नो, द येलो वन इज इंटरफेरेंस, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस आ रहा है। तो हम, क्योंकि हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशो, या इसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइस, S/N। तो अगर नॉइस कम है, अगर ये रेशो हमारे पास ज़्यादा है तो ओके है। तो अगर हम इस रेशो को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम अगर सिग्नल पावर को इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली रेशो, जो नेट रेशो है हमारे पास, वो ज़्यादा हो। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम लेट्स से हम इसके पावर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ट्रांसमिशन पावर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, इस टावर के ट्रांसमिशन पावर को अगर हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये मामला तो हल हो जाएगा कि एस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो SNR जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम इसकी पावर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये सिग्नल जो है लॉन्ग ट्रेवल करेगा, यहाँ तक ट्रेवल करेगा और मज़ीद मतलब आगे जाएगा। तो आगे जितना सिग्नल आपका ट्रेवल करेगा, जहाँ जहाँ ये ट्रेवल करेगा, वहाँ पे अगर सेम बैंडविड्थ यूज़ हो रही हो तो वहाँ पे इंटरफेरेंस ये मज़ीद इंड्यूस करेगा। इसीलिए हमारा जो को चैनल इंटरफेरेंस है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते यूजिंग बाय इंक्रीजिंग द पावर, ट्रांसमिशन पावर को हम इंक्रीज़ करके इसको मिटिगेट नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारे पास थर्मल नॉइज़ है उसको ओवरकम करने के लिए हम ट्रांसमिटिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं को चैनल इंटरफेरेंस की। को चैनल इंटरफेरेंस एंड सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी किस तरह इफ़ेक्ट होती है को चैनल इंटरफेरेंस से। बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय द को चैनल सेल्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया को चैनल सेल्स किसे कहते हैं। So what we have to do, we have to make sure that the co-channels or co-channel cells must be physically separated by a minimum distance to provide separate isolation due to propagation. Basically हमने ensure करना है कि जो co-channel cells हैं वो they should be far apart such that they they, they they can affect each other with the minimum interference. इनकी जो ट्रांसमिशन है, अगर चूँकि वी ऑलरेडी नो दैट दे सिग्नल जो ट्रांसमिशन होती है विद द डिस्टेंस डिग्रेड होती है, उसकी पावर, उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। तो को चैनल सेल्स अगर उनके दरमियान प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेपरेशन हो तो क्या होगा,
कि वो इंटरफेरेंस वो सिग्नल क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी वजह से ट्रैवल की वजह से एनर्जी कम होगी, तो बीइंग एन इंटरफेयरिंग सिग्नल वो उसके पावर कम होगा और वो कम इफेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर सेल को। सो बेसिकली अगर हम देखें, अगर हम कंसीडर कर लें कि जो हमारे पास सेल्स हैं उसका सेल साइज इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम, और जो बेस स्टेशन है हमारे पास वो सेम पावर ट्रांसमिट कर रहा है, then the co-channel interference ratio is independent of the transmitted power and become a function of the radius of the cell। क्योंकि ट्रांसमिशन पावर सेम है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेल का साइज भी सेम है, तो फिर तो सब में कॉमन हो जाएगा कि जी जितनी हमारे पास जितना डिस्टेंस होगा उतनी डिस्टेंस के हिसाब से उसका सिग्नल की वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। सो अगर हम ये assumption लें then we can simply calculate a parameter that is called d by r or the channel reuse ratio। channel reuse ratio जो हमारे पास है d, हमारे पास इसमें the distance between the center of the co-channel cell, दो हमारे पास जो co-channel cells हैं उसके दरमियान जो distance है। co-channel cells कौन से हैं, लेट मी शो यू इन द फिगर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये को चैनल सेल्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जैसे ए एंड ए, ये को चैनल सेल है। तो इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है स्ट्रेट वो फिर कह रहा है डी, और आर आपका क्या है, आर इज द रेडियस इस पर्टिकुलर सेल का जो रेडियस है। देखिए इस रेशो को अगर हम देख लें, इस रेशो को अगर हम देख लें देन डी, ये रेशो अगर ज़्यादा होगी एफ, जस्ट अ सेकंड, ये रेशो अगर हमारे पास ज़्यादा होगी अगर क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स कि डी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और आर की वैल्यू जो है को वो कम है, तो ये इट विल रिजल्ट इन अ लार्जर वैल्यू ऑफ क्यू। लार्जर वैल्यू ऑफ क्यू मीन्स कि दो को चैनल सेल जो है वो आइसोलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, फार अवे है। फार अवे अगर है तो इंटरफेरेंस कम होगी और हमारे पास ट्रांसमिशन क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास इसमें मसला क्या होगा, इसमें अगर दो को चैनल से एक दूसरे से दूर है एट मीन्स के आप जो रीयूज़ हैं वो कम कर रहे हैं, तो सिस्टम कैपेसिटी जो है वो आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास आ, इसकी वैल्यू क्योंकि वैल्यू कम है, क्योंकि वैल्यू कम तब होगी जब डी की वैल्यू कम हो और आर की वैल्यू जो है वो निस्बतन ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब रेडियस ज़्यादा हो या रेडियस कम भी हो लेकिन डी की दो जो आपके सेल्स है उसके दरमियान को चैनल सेल्स उसके दरमियान डिस्टेंस कम होगा, तो आपके इट मीन्स कि आप रीयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और इस केस में आपके क्यू की वैल्यू जो है रीयूज़ रेशो जो है आपका वो कम हो जाएगा। रीयूज़ रेशो कम होने का मतलब है कि आपकी इस केस में कैपेसिटी तो इम्प्रूव होगी, ठीक है, लेकिन आपकी जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन है हेक्सागोनल जो ज्योमेट्री है उससे डी बाई आर, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि डी बाई आर जो हमारे पास है वो 3n के बराबर आता है। 3n n इज़ द क्लस्टर साइज। तो सिंपली अगर आपके पास क्लस्टर साइज बड़ा है, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर आपके पास क्लस्टर साइज कम है तो क्यू की वैल्यू कम होगी। क्लस्टर साइज कम है मीन्स एक क्लस्टर में अगर आपके पास 3 सेल्स है मीन्स अमंग द 3 सेल्स यू आर डिवाइडिंग योर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑल एलोकेटेड स्पेक्ट्रम। और अगर आपके पास आपके पास जो सॉरी क्लस्टर का साइज 7 है दैट मीन्स जो आपके पास अवेलेबल स्पेक्ट्रम है उसको आप 7 सेल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी रीयूज जो है या स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी कैपेसिटी जो है उस केस में क्लस्टर साइज जब बड़ा होगा तो कैपेसिटी कम होगी, क्लस्टर साइज कम होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। बट ऑन द अदर हैंड कैपेसिटी ज़्यादा होगी लेकिन इंटरफेरेंस
इंटरफेरेंस की वजह से आपकी ट्रांसमिशन क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होगी. So there is a trade-off and must be made between these two objectives in actual cellular design. When we are designing a cellular system, we have to meet the objective. उसको हमने optimize करना है कि सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो आपके पास इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो, ताकि ट्रांसमिशन क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो. सो we have and while system design we have to take care of these two objectives and we have to come up with the optimal solution जहाँ पे आपके दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो. सो अगर हम देखें, हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, हेक्सागोनल जो सेल ज्योमेट्री है, जिसमें हमारे पास आई और जे की वैल्यू के ऊपर हमने क्लस्टर साइज डिफाइन करना है. सो दैट्स फॉर क्लस्टर साइज ऑफ 3, जो सिग्नल को चैनल रीयूज रेशियो है वो हमारे पास 3 आता है. दैट इज इक्वल टू बेसिकली स्क्वायर रूट 3n. तो 3n इज इक्वल टू 9 आपके पास ये. इसी तरह 7 के लिए सो स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 आपके पास 4.58 आ जाएगा. इस तरह 12 के लिए आपके पास 6 आ जाएगा. 13 के लिए आपके पास 6.24 आ जाएगा. ये आपके पास रीयूज रेशो की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, अब अगर हमारे पास रीयूज रेशो मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन हम ये मालूम कर सकते हैं कि जी अगर हमारे लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से हमारे पास एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है एंड ये सेल है, यहाँ पे ये लेट्स से दीज टू आर रीयूज सेल, दिस इज ए एंड दिस इज अगेन ए. ठीक है, तो हम पॉइंट कर सकते हैं कि जी लेट्स से हमारे पास इस पॉइंट पे सेल एच पे जो यूज़र है, वी हैव टू मेक श्योर कि उस यूज़र को मिनिमम जो रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन है, मिनिमम रिक्वायर्ड जो SNR है, सिग्नल टू नॉइस रेशो है, वो यहाँ पे हम इंश्योर कर लें कि जी वहाँ पे उतना उसको इंटरफेरेंस की लेवल इतनी हो कि वहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड SNR है वो यहाँ पे अचीव हो. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसमिशन पावर आ रही है एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जी हमारे पास क्लस्टर साइज कितना होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई करे मिनिमम रिक्वायर्ड पावर और SNR फॉर अ वॉइस कॉल एट द सेल एज. ठीक है, तो हम एग्जांपल के साथ इसको कर लेते हैं कि जी किस तरह हम इंश्योर कर लेते हैं वाइल सिस्टम डिज़ाइन कि क्लस्टर का साइज़ हमने क्या रखना है ताकि इंश्योर हो कि जो सेल एज है वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा को चैनल की वजह से, को सेल की वजह से, वो एटलीस्ट इंश्योर करेगा मिनिमम रिक्वायर्ड जो कॉल के लिए पावर रिक्वायर्ड है वो उतना पावर इंश्योर कर लेगा. सो इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ. एंड अच्छा, एग्जांपल से पहले हम देखते हैं SNR को कि सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो क्या है और इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं. सो SNR फॉर मोबाइल रिसीवर विच मॉनिटर द फॉरवर्ड चैनल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉरवर्ड चैनल एंड रिवर्स चैनल्स को ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको. S डिवाइड बाय I. S क्या है? S इज़ द सिग्नल, द डिज़ायर्ड सिग्नल जो कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए ट्रांसमिट हो रहा है. So let's say we have a hexagonal cell here and यहाँ पे हमारे पास टावर है, यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है और इस यूज़र को जो सिग्नल आ रहा है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड S. ठीक है, S सिग्नल एंड डिवाइड बाय I is interference. But again we know that interference source is not a single source, it can be from multiple sources. और जब हम क्लस्टर की बात करते हैं तो क्लस्टर में हमारी ये सोर्सेज ऑफ इंटरफेरेंस जो है, हम अगर बात करते हैं को चैनल्स की. ठीक है, तो को चैनल्स के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल ए है और हमें पता है कि ये 19 सेल स्ट्रक्चर है, तो दूसरा ए हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एंड यहाँ आएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास को चैनल सेल्स है. अब को चैनल सेल्स यहाँ पे लेट्स से दिस इज द, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके कर दिया है, सॉरी.
एरो की बजाय ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको, यही हमारे पास ए सेल है। तो इसके अंदर जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, और इस ए चैनल के सराउंडिंग में फर्स्ट ईयर में, अच्छा ये फर्स्ट ईयर है, इसके बाद सेकंड ईयर में भी बहुत सारे ए होंगे, लेकिन चूंकि वो ए वो काफ़ी दूर होंगे तो उसका इफेक्ट जो है इस सेल पे बहुत कम होगा। हाँ, वो इस सेल पे इफेक्ट ज़रूर करेंगे, ये वाला जो है वो इस पे करेंगे, इसके सराउंडिंग में करेंगे। तो हम जब भी इंटरफेरेंस कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ फर्स्ट ईयर को कंसीडर करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, सो यहाँ पे जो हमारे पास दिस इज द सिग्नल एस, एंड जो हमारे पास इंटरफेरेंस है दिस इज फ्रॉम ऑल दीज सराउंडिंग सेल्स विच इज यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड इज है। तो वो कितने हैं हमारे पास? वो हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं कि समेशन ऑफ आई इज बेसिकली द इंटरफेरेंस इंड्यूस्ड बाय द ith सेल। ठीक है, ith सेल जो इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है वो है, और हम काउंट कर रहे हैं फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i0। i0 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरफेयरिंग सेल है, को चैनल सेल है, तो इस केस में हमारे पास वो 6 है। तो यूँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्नल इज गिवन, सिग्नल पावर इज गिवन यहाँ पे, और जो इंटरफेरेंस है वो हम उसको सम अप करके, क्योंकि वो सारे एक ही चैनल पे होंगे, सेम सेम स्पेक्ट्रम पे होंगे, तो उसको हम सिंपली सम अप करके इंटरफेरेंस, टोटल इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी दिस इज विल बी एस आई, सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगी हमारे पास। The average received power PR at a distance d from the transmitting antenna is approximated by, अगर हम बात करें यहाँ पे, let me make a bigger cell here, अगर हमारे पास हम बात करें एक्सेल की, और उस यही ए सेल है, लेट्स से हमारे पास एंटेना है, यही यूज़र है, तो जो ट्रांसमिटेड पावर है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जो पावर रिसीव हो रहा है पी आर, जो रिसीव पावर है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि जी इस, हमने ऑलरेडी कह दिया कि जी विद द डिस्टेंस ये पावर जो है वो डिग्रेड होता है, तो इसका क्या रिलेशनशिप है डिस्टेंस से, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी आर डिवाइड बाई पी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, दिस रेशो इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी नॉट, ठीक है, एंड दिस इज एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट होगा माइनस एन यहाँ पे क्या है, ये पाथ लॉस एक्सपोनेंट है। पाथ लॉस एक्सपोनेंट मीन्स जितना आप ट्रेवल करते हैं तो विद द डिस्टेंस आपकी पाथ लॉस कितनी होती है, आपकी सिग्नल जो है वो कितनी डिग्रेड होती है। इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, जो कि प्री जो कि गिवन होते हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो रूरल अर्बन एरियाज़ होते हैं उसमें इसकी वैल्यू जो है 2 से लेकर 4 तक होती है, तो 2 से लेकर 4 तक हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, पाथ लॉस एक्सपोनेंट जो है इसकी वैल्यू। तो इसी को हम अगर फर्दर एक्सपेंड करें देन वी विल गेट कि ये जो रेशो है पावर, अच्छा इसमें पी नॉट क्या है और डी नॉट क्या है। पी नॉट इज बेसिकली द पावर रिसीव्ड एट अ क्लोज एंड रेफरेंस पॉइंट एट अ स्मॉल डिस्टेंस डी नॉट। अगर हम, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, इस टावर, ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस, सॉरी इस तरफ, ये दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज डी नॉट, ठीक है, और यहाँ पे जो पावर रिसीव हो रहा है क्लोज इन रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे पास पी नॉट है। ये हमारे पास गेम है, एक रेफरेंस पॉइंट है कि जी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो आपका रिसीव्ड पावर जो है वो पी नॉट है, ठीक है। तो उसके साथ अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो हमारे पास जो जब डिस्टेंस डी हो जाएगा, यहाँ पे डी, डिस्टेंस डी जब हो जाएगा तो डी पे पावर कितना रिसीव होगा, पी आर होगा, एंड दैट इज गिवन बाय पी आर इज इक्वल टू पी नॉट। इसको सिंपली अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाए तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। ये जो पी आर है हमारे पास, the PR power received at particular point at a particular distance d is equal to P naught into d divided by d naught whole power minus n। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रिसीव पावर कैलकुलेट कर सकते हैं।
जब भी हम एनालिसिस करते हैं, जब भी हम सिमुलेशन करते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकली क्योंकि उसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एंड सिमुलेशन हेक्सागोनल ज्योमेट्री में जब करते हैं तो सिंपली दिस पावर लॉस जो हमारे पास होता है, पावर लॉस, उसको हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस के साथ जो है ये इसकी जो पावर डिग्रेड होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें डीबीएम में, डीबी डेसिबल में रिप्रेजेंट करे, डेसिबल मिली में रिप्रेजेंट करे, सो अप्लाइंग इट हियर, पावर रिसीव्ड इन डेसिबल मिली विल बी इक्वल टू पावर रिसीव्ड इन डेसिबल मिली, जो यहाँ पे रिसीव हो रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट पे, माइनस इसको हम जब करते हैं तो माइनस इस रेशो को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो माइनस एन चूँकि पावर में है तो माइनस एन नीचे आ जाएगा, एंड इट विल बी लॉग, हम डीबीएम में इसको कन्वर्ट करते हैं तो भी हम नॉर्मल से जब डीबीएम में कन्वर्ट करते हैं तो हम लेते हैं 10 लॉग 10 लॉग 10 ले लेते हैं, तो इस 10 लॉग बेसिकली वी आर टेकिंग 10, let me write it here, 10 log 10 and d divided by d naught power minus n. So ये हम जब हम dBm में कन्वर्ट करते हैं, so we have to do it like this, but you know that dB हमारे पास जो पावर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, so we are getting it here minus n हमारे पास यहाँ पे कहते हैं minus 10n 10 जो इधर ही कर रहे हैं dB में कन्वर्जन कर रहे हैं, minus 10n log d by d naught, ये हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन dBm डेसिबल मिली। डेसिबल हमारे पास जो है बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं फॉर रेशो, जब में हम रेशो या गेन को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉगरिथमिक यूनिट है हमारे पास, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है बिग वैल्यूज़ और स्मॉल वैल्यूज़ को शॉर्ट नोटेशन के साथ, तो बेसिकली हम जो गेन होता है या लेवल्स उसकी जो रेशो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डीबी हम यूज़ करते हैं। पावर में जितनी भी हमारे पास है नॉर्मली ये ऐसा यूनिट नहीं है, बट वी हैव टू वी आर यूजिंग इट विद द पावर मोस्टली, डीबीएम और डीबी किस तरह कन्वर्ट करते हैं एक्सेट्रा, इसको हम वी नीड एंड फर्दर एग्जांपल, इसको हम फिर डिटेल से देख लेंगे। This particular point you need to know that what is SIR, ठीक है, signal to interference ratio, and what is how we can calculate the received power at a particular distance at a point located at distance d, ठीक है, and how we can represent it in decibel milli, dB milli. All right. Okay. अच्छा जी, so signal to interference ratio, let's assume, या already हमने assume भी किया है कि when the transmit power of each base station is equal, सबका same है, and the path loss exponent is the same, एक जो हम सिस्टम ले रहे हैं उस सिस्टम में पाथ लॉस एक्सपोनेंट्स भी सेम है, मीन वो एक ही यूनिफॉर्म एरिया में है, उसमें जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है वो भी सेम है, और पावर ट्रांसमिशन जो है वो भी सारे के सारे सेल्स का सेम है। Then the SI can be approximated as SI is equal to R power minus n, that is the radius of the serving cell, and divide by di. Di is the distance from the co-cell, जो सेंटर ऑफ द कोर्स है। तो बेसिकली हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि जो आपका पावर है दैट इज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उस डिस्टेंस के अगर आपकी ट्रांसमिशन पावर सेम है और पाथ लॉस एक्सपोनेंट भी सेम है, देन वी कैन सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द डी आई इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द को चैनल सेल्स, अभी हमने डिस्कस किया।
सो कंसिडरिंग द फर्स्ट, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी डिस्टेंस है, उसको सम करते जाए। कितने को चैनल सेल्स है हमारे पास? आई नॉट सेल है, ठीक है, आई नॉट सेल है, तो सबको जो है सम अप कर लें। सो कंसिडरिंग द फर्स्ट लेयर ऑफ इंटरफेयरिंग सेल, इफ ऑल द इंटरफेयरिंग बेस स्टेशंस आर इक्वल डिस्टेंस and if the distance is equal to d between the cell centers, then let's assume करते हैं कि जो हमारे पास को चैनल सेल्स है उन सब का जो डिस्टेंस है वो सेम है, and the distance is equal to d, then simply the above equation can be simplified as SI is equal to d by r, ठीक है, d पावर माइनस n है एंड r पावर माइनस n है, तो सिंपली d by r पावर n हो जाएगा एंड देन डिवाइड बाय I naught हो जाएगा। I naught is simply the number of co-channel cells। तो अगर हम ऑलरेडी जो पिछले साल में हमने इक्वेशन देखा था, d by r is equal to the q is equal to d by r and that was equal to square root 3n if you remember। So यहाँ पे हमारे पास this equation can be simplified as the SI is equal to square root n, that's a 3n square root power n divided by I naught, simply simplified हो जाएगा। So it means that the SI can be, and the SI, the signal to interference ratio, is a function of the cluster size and number of interfering cell, how many we are considering. Usually we are considering the cells in the first layer, that is equal to 6 or so on, and then the power n, which is basically the path loss exponent. So the test indicates that sufficient voice quality is provided when the SI is greater than or 10 dB for the amps जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के नेटवर्क्स थे, उसके लिए 18 dB जो फॉर गुड वॉइस क्वालिटी, जो कि डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए मिनिमम जो पावर रिक्वायरमेंट था वो 18 dB का था। इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो अगर आपका सिस्टम इंश्योर करता है कि आपका जो SI है थ्रू आउट द सेल वो 18 dB होगा, then there will be no interference or the call will not be affected, dropped or blocked, not blocked but dropped due to the interference। नॉर्मली इंटरफेरेंस का इशू कहाँ पे ज़्यादा होता है? सेल एज पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम इंश्योर कर ले कि जी सेल एज का सेल से डिस्टेंस कितना होता है? सेल के रेडियस के बराबर होता है। तो अगर हम इंश्योर करें कि सेल के रेडियस के बराबर की डिस्टेंस पे जो SI हमारे पास रिसीव्ड होगा वो 18 dB या उससे ज़्यादा होगा, देन हमारे पास इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा और उसके हिसाब से हम अपने जो क्लस्टर है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मींस क्लस्टर को स्मॉल बना सकते हैं। कितना स्मॉल हम अपने क्लस्टर को रख के ताकि वो ये ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करे। तो इट मीन्स जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था अभी तक जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि हमने एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है स्पेक्ट्रम की, मींस कैपेसिटी को इन्हांस करना है, या जित कैपेसिटी इन्हांस कब होगी? जब हमारे पास ज़्यादा रीयूज़ हो। ज़्यादा रीयूज़ होगा तो क्लस्टर का साइज़ जो है वो छोटा होगा और क्लस्टर का साइज़ जब छोटा होता है तो उसके साथ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड इज़ कि क्लस्टर का साइज़ जब छोटा होता है तो इंटरफेरेंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। अगर हम इंश्योर कर ले कि सेल के एज पे, हर सेल के एज पे, क्योंकि एज पे ज़्यादा इफेक्ट होता है यूज़र, तो अगर वहाँ पे सेल के एज पे अगर हमारे पास इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम जो SI रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करें, देन हम अपने क्लस्टर को इस हिसाब से क्लस्टर के साइज को कम कर सकते हैं। Okay, so let's see the example. So assuming a path loss coefficient of 4, what will be the cluster size to achieve the desired SI requirement? Let's see an example. Example क्या है हमारे पास? Example is
If a signal to interference ratio of 15 dB is required for satisfactory power channel performance of a cellular system, हमारे पास 15 dB लेट्स से रिक्वायरमेंट है कि जी अगर 15 dB हमारे पास SI सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो जो है वो 15 dB हो तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री होगी. What is the frequency reuse factor in cluster size that should be used to maximize the capacity? Again वही बात हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैपेसिटी को मैक्सिमाइज किया जाए. इसका मतलब है अगर हम सिंपल सोल्यूशन ये भी हो सकते कि हम जो क्लस्टर साइज है वो बड़े से बड़ा रखे तो ये जो फिगर है ये अचीव हो जाएगा 15 dB अचीव हो जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम हियर इज कि हम इसको क्लस्टर साइज को कितना छोटा रखें ताकि ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और साथ में ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो. सो इफ द पाथ लॉस एक्सपोनेंट इज दो हमारे पास पाथ लॉस एक्सपोनेंट है नंबर ए केस ए में हमारे पास पाथ लॉस एक्सपोनेंट इज 4 देन केस बी में हमारे पास वो पाथ लॉस एक्सपोनेंट 3 है. दोनों केस में चेक करें. अज्यूम दैट देयर आर 6 को चैनल्स है. नॉर्मली हम जो फर्स्ट ईयर में कंसीडर करते हैं तो 6 को चैनल ही करते हैं. चैनल्स इन द फर्स्ट ईयर and all of them are at the same distance from the mobile user. Use suitable approximation. ठीक है हमारे पास हम सबसे पहले देखते हैं केस ए में. केस ए में हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू 4 है. ठीक है अब हम क्या करते हैं हमने क्लस्टर साइज हमारे हमसे मांगा क्या गया है व्हाट शुड बी द रीयूज फैक्टर फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर एंड क्लस्टर साइज. क्लस्टर साइज हम डिफाइन करते तो रीयूज फैक्टर भी हमारे पास मालूम हो जाएगा. अच्छा हम अगर क्लस्टर साइज 7 का लेते हैं तो क्या होगा. क्लस्टर साइज हमारे पास अगर हम 7 का लेते हैं देन वी हैव टू फाइंड जैसे हमारे पास अगर 7 से रीयूज फैक्टर है दैट मीन्स n जो है हमारे पास वो n 7 के बराबर है. ठीक है ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एस आई है एस डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3n होल पावर स्मॉल n. इज इट लाइक दिस. अभी जो हमने डिस्कस किया लेट मी चेक डिवाइड बाई आई नॉट भी है डिवाइड बाई आई नॉट है कि नंबर ऑफ चैनल्स है. तो अगर हम इसको ले लें देन वी व्हाट वी विल गेट 3 into 7 होल पावर जो हम ले रहे हैं इट इज 4 एंड डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू 6. हमारे पास जो चैनल्स आ रहे हैं वो क्या है 6 है. नंबर ऑफ को चैनल्स जो है 6 को चैनल्स क्योंकि फर्स्ट ईयर को हम कंसीडर करते हैं. तो देन what we will get if we simplify this so that will be 21 square root 21. अच्छा ये हमारे पास टेबल में है. Then what we will get this value is equal to 4.58. ठीक है and then we will take this whole power 4 and divide by 6. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. what we will get 4 calculate and divide by 6. So we get the approximate value is equal to 75.3. Now we have to convert this value into dB क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो dB में है और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो dB में नहीं है. So how we can convert it into dB? We have to take 10 log 10 of 75.3. So let's take log 10 of 75 and then multiply it with the 10. So let me take log 10 75.3. What we will get? We get 1.86. ठीक है तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे then it will become 18.6 dB. And what is the required value here? The required value is 15 dBm. That means अगर हम 7 सेल क्लस्टर यूज करेंगे तो हमारे पास जो
हमारे पास जो SIR है वो गिवन SIR से ज़्यादा आएगा, 15 SIR, 15 से ज़्यादा आएगा, 18 आएगा। दैट मीन्स हम 7 सेल रीयूज, सॉरी 7 सेल क्लस्टर का साइज हम 7 से रख सकते हैं, और हमारे पास रीयूज फैक्टर क्या होगा, 1/7 होगा। अच्छा, इसको अगर हम इसको अगर हम सेकंड केस के लिए देखें, फॉर द केस बी जो हमारे पास है, जिसमें कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, पाथ लॉस कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है, केस बी, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, और हमारे पास यही सारा अभी जो हमने इक्वेशन कैलकुलेशन कर दिया तो सेम आएगी, क्योंकि n हमारे पास 7 है, तो जब n हमारे पास 7 है, s डिवाइड बाई i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3n होल पावर n डिवाइड बाई i। ये तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, सिर्फ पावर यहाँ पे क्या आएगा, 4 की बजाय 3 आ जाएगा। तो अगर हम 4 के बजाय इसकी पावर 3 ले लें, हमारे पास आ रहा था क्या, 4.8, 4.58 और पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाई 6। ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखोगे तो हम 16 अगर हमारे पास 16 आ रही है, तो देन अगेन इसकी हम उसको कन्वर्ट करते हैं डीबी, डीबी में कन्वर्ट करते हैं, तो 16 को हम डीबी में कन्वर्ट करते हैं, 10 10 log 10 ऑफ 16। ठीक है, तो 16 के अगर हम log 10 ले लेते हैं, we'll get 1.2, 1.2 to 10, so we'll get what, 12.12, 12 हमारे पास आ जाएगा। दैट मीन्स 12 dB हमारे पास पावर आ जाएगा, अगर हम हमारे पास पाथ लॉस कोएफिशिएंट क्या है, वो 3 है, 3 है, और हम क्लस्टर साइज जो है 7 रख लेते हैं, तो 7 के केस में हमारे पास जो पावर है वो 12 आएगा, 12 आएगा, मीन्स के जो रिक्वायर्ड पावर है, रिक्वायर्ड SIR है, SI है, उससे ये पावर कम है। ठीक है, SI कम है, मीन्स that 7 is not a suitable cell cluster size in this case. So what we have to do, we have to increase, हम further decrease करेंगे तो ये और भी कम आएगा, it means we have to increase the cluster size, और cluster size हम increase करेंगे तो 7 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास cluster का ऑप्शन है, that is 12। तो हम चेक कर लेते हैं इसको 12 के लिए, फॉर n is equal to 12, n is equal to 12 के लिए जब हम चेक करते हैं, so हमारे पास same equation SI we have to calculate, and 3 into 12 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, एंड वी हैव 6, तो इट विल बी 36, एंड 36 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास, 36 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 6, and 6 divided by 6, and this is equal to 3 simply. So what we will get, we will simply get 6, uh, square here, and 36 हमारे पास है। तो 36 का हम क्या करेंगे, 36 को कन्वर्ट करते हैं डीबी, डीबी में हम कन्वर्ट करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, वी हैव टू टेक 10 log 10 ऑफ 36, 36 का log 10 हमारे पास क्या आ रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 36 का log 10 हमारे पास आ रहा है 36 log, that is 1.56, मल्टीप्लाई करें तो व्हाट विल गेट 15.56। सो अगर हम क्लस्टर का साइज 12 रखते हैं, then we can ensure an SI equal to 15.6, जो कि ज़्यादा है required SI से, required SI is 15 dB। ठीक है, so in this case 12 cluster size 12 will be the suitable cluster size to ensure the required SI value and maximize the capacity, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं तो 7 पे चले जाएंगे,
but in case of 7, the value is not appropriate and the SI requirement is not fulfilled. So in this case, for I is equal to 3, for I is equal to for I is equal to 3, सॉरी फॉर n इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्लस्टर साइज 7 होगा, फॉर n इज इक्वल टू 4 हमारे पास क्लस्टर साइज क्या होगा, सॉरी फॉर n इज इक्वल टू 3 12 होगा, फॉर n इज इक्वल टू 4 हमारे पास क्लस्टर साइज 7 होगा. ओके, so the next is adjacent cell interference. Adjacent cell interference में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि interference resulting from the signal that are adjacent in frequency to the desired signal is called adjacent cell interference. जो let's say अब यूजर ए कम्युनिकेट कर रहा है बेस स्टेशन 1 के साथ, ठीक है, तो उसको जो चैनल एलोकेट हुआ है उसका एडजेसेंट चैनल जो है वो किसी दूसरे यूजर को एलोकेट होता है. तो उससे क्या होता है कि ये एक चैनल से एनर्जी लीक होती है दूसरे चैनल में, और वो लीक तो ऐसे नहीं होती एक्चुअली, लेकिन जो आपका फिल्टर होता है वो फिल्टर उसको प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो एनर्जी एडजेसेंट से आ रही होती है उसको भी एक्वायर कर लेती है. तो बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय द imperfect receiver filter which allow nearby frequency to leak into the pass band. It can be minimized by careful filtering and channel assignment. Filtering अगर हम appropriate कर ले, properly कर ले, तो ये minimize हो सकती है. एंड इसके अलावा चैनल असाइनमेंट अगर हम प्रॉपरली करें, चैनल असाइनमेंट हम प्रॉपरली इस तरह कर सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर एडजेसेंट चैनल्स को बिल्कुल एलोकेट असाइन ना किया जाए. इट कैन बी a cell need to be assigned a channel which are adjacent, which are, a cell need not to be assigned channels which are adjacent in frequency. But it will not be effective if the frequency reuse factor is small. Frequency reuse factor अगर हमारे पास small होगा तो आपके पास इसमें choice नहीं होगा, इतनी choice आपके पास नहीं है कि आप adjacent channels को allocate ना करिए. You have to allocate in that case. तो हमारे पास इसके लिए क्या है, channels channel allocation schemes है, जिसके तहत हम और assignment channel allocation इस तरह करते हैं कि कोशिश करते हैं उसमें कि एक ही सेल के अंदर एडजेसेंट चैनल एलोकेट ना हो, तो चैनल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, जिसकी वजह से को एडजेसेंट एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम. अच्छा, तो इंटर सॉरी को चैनल इंटरफेरेंस को किस तरह रिड्यूस, सॉरी नॉट को चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को चैनल एलोकेशन के तहत किस तरह रिड्यूस किया जाता है. कि एग्जांपल देते हैं एम्प्स चैनल एलोकेशन फॉर 2 ऑपरेटर्स. हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी. इनके दरमियान इनके दरमियान भी और विद इन द सेम ऑपरेटर एलोकेशन किस तरह की जाती है ताकि चैनल्स के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो. इस एग्जांपल में हमारे पास टोटल 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है, जिसको डिवाइड किया गया है 832 चैनल्स में, और 832 चैनल जो है फर्दर वो डिवाइड की गई है 2 ऑपरेटर में. तो 416 एक के पास आ गया और 416 दूसरे ऑपरेटर बी के पास आ गया. 416 में से 395 चैनल जो है वो हमारे पास वॉइस चैनल है, और रिमेनिंग 21 चैनल जो है वो हमारे पास 395 और 21 वो कंट्रोल चैनल है. यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो 1 से लेकर 312 तक जो चैनल है हमारे पास वो वॉइस चैनल है, और उसके बाद 313 से लेकर 333 तक जो हमारे पास चैनल है वो कंट्रोल चैनल है, 21 कंट्रोल चैनल है. इसी तरह बी के लिए भी है. उसके बाद एक्सटेंडेड वॉइस चैनल्स है. ठीक है, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की, हमारे पास एक 7 सेल रीयूज सिस्टम है. 7 सेल है हमारे पास, क्लस्टर का साइज 7 है. सब चैनल को 3 सबसेट में डिवाइड किया. 3 सबसेट मीन्स एक सबसेट जो है हमारे पास ए है 1 to 7, दूसरा जो है वो बी है 1 to 7, और तीसरा जो है सी है 1 to 7. 1A, 1B, 1C. This corresponds to cell A, cell 1. 2A, 2B, 2C. This corresponds to cell number 2. ठीक है, ये सबसेट है जो कि सेल नंबर 2 में यूज है.
इसी तरह चैनल्स को अब अगर आप गौर से देखें चैनल्स को तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टार्टिंग ऑफ चैनल नंबर 1 हमारे पास 395 जो चैनल स्टार्टिंग ऑफ चैनल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह एलोकेट की गई 4 5 6 7 8 एंड सो एक जो हमारे पास सेल होगा सेल नंबर 1 उसको ये वाले चैनल असाइन होंगे, सेल नंबर 2 जो होगा उसको ये वाले चैनल असाइन होंगे, ये वाले लेट मी शेयर विद द ग्रीन। सेल नंबर 3 जो होगा उसको ये वाले चैनल असाइन होंगे 3, ठीक है। अब अगर आप देखें गौर से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गई है तो एक सेल नंबर 1 को जो पहला चैनल असाइन हुआ है वो है चैनल नंबर 1, उसके बाद जो दूसरा असाइन हो रहा है वो है चैनल नंबर 22, उसके बाद जो तीसरा असाइन होना है वो है चैनल नंबर 43। इट मीन्स हर एक चैनल जो है वो सेपरेटेड है बाय 21 चैनल, जो कि बहुत ज़्यादा है। इवन अगर हम सेम उसमें भी देख ले, सेट में देख ले, सेट नंबर 1 में तो इतनी डिफरेंस आ रही है, सेट नंबर 2 में कितने आ रही है। सेट नंबर 2 और 1 पे अगर हम देख ले तो सेट नंबर 1 में जो हमारे पास पहला चैनल था वो चैनल नंबर 1 था। सेट बी में जो हमारे पास 1 बी में जो पहला चैनल है चैनल नंबर 8 है। मीन्स इवन सबसेट में भी जो चैनल सेपरेटेड है वो सेपरेटेड बाय 7 चैनल है। तो 7 चैनल पार्ट है, मीन्स जो हमारे पास सेट ए बनेगा, सेट ए में हमारे पास जो चैनल होंगे वो है चैनल नंबर 1, राइट, लेट मी राइट जस्ट हियर। चैनल नंबर 1 होगा, दैट्स बीटीएस नंबर 1 जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास चैनल नंबर 1 होगा, नेक्स्ट चैनल नंबर 8 होगा, नेक्स्ट सी से आएगा वो होगा 13, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा हमारे पास 21 आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा वो यहाँ से आएगा 29, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 36। ये चैनल जो है वो सेल नंबर 1 में यूज़ होंगे। इसी तरह सेल नंबर बी में, तो ये चैनल जो है इसकी लोकेशन इस तरह की गई है कि अगर इवन दो इसी सेल के अंदर दो यूज़र हैं, हमारे पास एक है यूज़र ए एंड एक है यूज़र बी, और एक को एक चैनल असाइन किया गया 1 नंबर, दूसरे को नंबर 8 असाइन किया गया, तो ये 1 और 8 के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है। 1 की एनर्जी जो है वो नंबर 8 में लीक नहीं हो सकती। आपका पेल्टर अगर अच्छा नहीं भी है फिर भी इतनी एनर्जी लीक नहीं हो सकती, इतनी पेल्टिंग कर सकते। इसके दरमियान डिफरेंस जो है बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से एलोकेशन ये एलोकेशन स्कीम जो है वो इंश्योर करेंगी कि जो एडजेसेंट से इंटरफेरेंस है वो मिनिमाइज की जाए यूजिंग द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द चैनल। तो इसी तरह चैनल जो है वो लोकेट की जाते हैं। यहाँ पे इवन अगर आप देखिए कंट्रोल चैनल 21 कंट्रोल चैनल है, पहले सेल को 313 मिल रहा है और इसके साथ उसको 320 मिल रहा है, ठीक है। सो इवन कंट्रोल चैनल के दरमियान भी जो एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस है वो मिनिमाइज होगी, ठीक है। this all about reducing the interference and adjacent cell. Okay, ये next topic or trunking and graded up services. So interference, co-channel interference. Let me summarize it. हमारे पास interference जो है वो major factor है and degrading the quality of service. core block में capacity को और कैपेसिटी को सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो डिग्रेड करता है इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, दैट इज वन इज को चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस को हम सिस्टम प्लानिंग के तहत जो है रिड्यूस कर सकते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव हमारा यही होगा कि कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैपेसिटी इंक्रीज़ हो और इंटरफेरेंस जो है वो कम हो, या मिनिमम रिक्वायर्ड जो SI है सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो वो इंश्योर हो थ्रू आउट द सेल, ठीक है, और उसके साथ साथ कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो। दूसरे नंबर पे फिर हमारे पास आता है एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस जो है वो एडजेसेंट चैनल की वजह से होते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर लोकेशन। जो एग्जांपल हमने देखी हैं लोकेशन अगर हम प्रॉपर्ली करें तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट डिज़ाइनिंग एफिशिएंट फिल्टर के थ्रू हम अगर प्रॉपर चैनल को ही फिल्टर करें और एडजेसेंट चैनल की एनर्जी जो यहाँ पे लीक हो रही है उसको फिल्टर ना करें तो उसको भी हम उसको कवर कर सकते हैं। All right, that's it for this topic. Thank you.